Very good afternoon, students. Today I am here with the chapter number 4, English of class 10, first flight. Dear students, this lesson based to Anne Frank. I think many students know more about Anne Frank because this story based to the cruelty of Hitler when Hitler occupied Germany. The Jewish people who lived in the Germany compelled to leave that place or try to hide themselves to come under the power of Nazis. Dear students, here in this lesson, Anne Frank, she was a little girl and she was very happy with his family. Like us, she also went to school and enjoy a lot of time there. But everything is not proper. When Nazi occupied Germany, they had to compel to hide her themselves. That is why they moved here and there. But finally, they were captured and sent to the concentration camp, where Annie died of typhus after the death of her sister Margaret Frank. Her mother was also died. Only her father Otto, the only survivor of the group. When he returned to Amsterdam after the Second World War, he found the diary of Anne Frank. So he decided to preserve it, and when he read, he found his maturity in her writing. He found her maturity in her writing, and he saw the insightful mind. He was impressed, and finally he decided to translate this book in many languages, because Diary of Anne Frank just written in Dutch language, and finally that book translated into many languages. And after that book became very famous, and one of the most readable book in the world. That is a brief summary of the lesson. Now see about the author, and before you read about the lesson, then after I will start to teach you the lesson. Yeah, beta देखो यहाँ पर before you read, here are given a picture. Anne Frank, this is a photo as I would wish myself to look all the time. Then I would maybe have a chance to come to Hollywood. Anne Frank, 10th अक्टूबर 1942. इससे ये पिक्चर उस समय किया, उसने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है. बेटा अब देखो यहाँ पे दिया है एनलिस मैरी एनी फ्रैंक. एनलिस मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929. ये उसका बर्थ डे है. ठीक है. शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 and died in 1945. तो आप सोच सकते हो कि क्या उसके मतलब कितने साल के थे. 15-16 साल की लड़की थी, उसकी एज में उसकी डेथ हो जाती है. Was a German born Jewish girl. Where she was born? She was born in Germany and she was a Jewish girl. वो कैसी लड़की है? She was a Jewish girl. So what do you understand here? She was a Jewish girl.
Then after you can see here, who wrote a diary while in hiding with her family. ये डायरी उस समय उसने उस समय लिखा जब वो अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मनी ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब जर्मनी को ऑक्यूपाइड कर दिया गया ना हिटलर के द्वारा, तो एम्स्टर्डम में वो अपने 4 फ्रेंड्स के साथ अपने परिवार के साथ वो हाइडिंग कंडीशन में थी, छुपी हुए थे. और फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजी गेन पावर इन जर्मनी. उसका जो परिवार था, जब नाजी ने हिटलर ने जब जर्मनी पर अपना अधिकार कर लिया, जब उसका शासन शुरू हो गया, तो उसका पूरा जो परिवार है वो एम्स्टर्डम चला गया. बट वे आर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड. जब नाजी का जो फैलाव था, विशाल क्षेत्र था, जब वो चला गया नीदरलैंड तक, जब उसका साम्राज्य हो गया, तो ये लोग वहाँ पकड़ लिए गए. यानी होल फैमिली हैज़ बीन कैप्चर्ड एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट द ज्यूस पॉपुलेशन इंक्रीज परसिक्यूशन. तो ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय द पॉपुलेशन ऑफ ज्यूस. The family went into hiding in 1943 in hidden room in her father Otto Frank. वो बता रही है कि उसकी जो परिवार है वो 1942 को छुपने के लिए गया था. वो कहाँ पे गए थे? ओटो फ्रैंक, उसके फादर के ऑफिस में, बिल्डिंग. एंड आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक वो छुपे रहे. द ग्रुप वॉज बिट्रायड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम. और उस ग्रुप को पकड़ लिया गया और उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया. वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस, जहाँ एनी की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ टाइफाइड, जिसको आप कहते हो वो टाइफस नामक, ठीक है, तो टाइफस से उसकी मृत्यु हो जाती है. एंड इन बर्गन वेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक. यानी कि जब उसकी बहन जो थी मार्गरेट फ्रैंक, उसकी मृत्यु के कुछ समय के बाद ही उसकी भी मृत्यु हो जाती है. हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. उस ग्रुप के जितने भी मेंबर थे सभी लोग मारे जाते हैं. जो उसके फादर थे ओटो, वही केवल सर्वाइव करते हैं. कन्विंस दैट इट वॉज यूनिक रिकॉर्ड. जब वो डायरी पाते हैं तो बहुत कन्विंस होते हैं, उनको लगता है कि ये तो बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है और उसको वो प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. उन्होंने डिसाइड किया उस डायरी को पब्लिश करने के लिए इनटू द नेम ऑफ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. तो माय चिल्ड्रन, दिस इज समथिंग अबाउट द ऑथर. ये कुछ ब्रीफ था, जो ब्रीफिंग थी ऑथर के बारे में. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, आपको समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं बिफोर यू रीड, हियर इज सम हिस्ट्री अबाउट लेसन. अब देखते हैं क्या है. द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. जो डायरी है वो एनी को दी गई थी उसके 13वें जन्मदिन पर. एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ. क्रॉनिकल मीन्स डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हो, वृतांत कह सकते हो. कुछ डायरी में उसने 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक पूरा उसने उसमें विस्तार से उसको डिस्क्राइब किया हुआ है. हर दिन की घटना को उसने उसमें लिखा है. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेशन फ्रॉम इट्स ओरिजिन डच. वास्तव में जो डायरी थी वो डच लैंग्वेज में थी. इनटू मेनी उसको ट्रांसलेट करके मेनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया है. एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रीड. और इस तरह से जो लेसन है वो सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला, विश्व में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला लेसन वो था. नाउ सी हियर, एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रीड बुक.
देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म, इतना ही नहीं, उस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, टेलीविज़न एंड theatrical production too, and even an opera based on the diary. It means on the base of the diary, there are many films, television program, theatrical program, and opera has been made. Described as the work of a mature, यानी उसको डायरी के पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे किसी मेच्योर व्यक्ति ने इस डायरी को मेंशन किया हुआ है, एंड इंसाइटफुल माइंड, और उसमें एक बिल्कुल सूक्ष्म ज्ञान दर्शाता है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, जो डायरी है वो हमें देती है एक अनुभव, एक आंतरिक मूल्यांकन उसके डेली लाइफ के बारे में। अंडर नाजी के उस हिटलर के या नाजी के अंडरटेक रहते हुए जो भी उसके अंदर फीलिंग थी उसको उसमें अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था, और वो बिल्कुल ये शो करता था कि एक इंटीमेट एग्जामिनेशन को वो दर्शाता था। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन, एनी फ्रैंक इस तरह से एनी फ्रैंक जो है वो अत्यधिक सम्मानित, डिस्कस ऑफ द होली विक्टिम, और अत्यधिक विवाद में रहने वाली हस्ती बन गई थी। यानी आप कह सकते हो कि एनी फ्रैंक सर्वाधिक विवादित चर्चित पीड़ितों में से एक हो गए थे, यानी एनी फ्रैंक सर्वाधिक विवादित चर्चित पीड़ितों में से एक हो गए थे। अब हम देखते हैं, नाउ वी आर सीइंग हियर द टेक्स्ट बुक। See here, writing is in a diary. Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. She said that to write diary is really a very strange experience for someone like me. यानी उसकी तरह के लोग जो डायरी लिखना चाहते हैं, वास्तव में ऐसे लोगों के लिए डायरी लिखना बहुत ही अद्भुत अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज, केवल इसलिए नहीं कि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं है कि मैंने इसके पहले कभी कुछ लिखा नहीं था। शी रोट मोर अबाउट इट, बट फर्स्ट टाइम व्हेन शी स्टार्ट टू राइट डायरी, दैट इज़ रियली अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस in back of some reason. It further she introduced the reason why she was surprised, but also because it seemed to me that later on neither I nor anyone, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता था कि न तो वह और न ही दूसरे लोग the else will be interested in the musing. Musing means होता है pondering, मतलब चिंतन करना, ना ही लोग इसमें रुचि लेंगे। और एक 13 वर्ष की स्कूल गर्ल के चिंतन को, उसकी थिंकिंग को लोग कोई इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि वो छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची को चीज़ों को कौन पसंद करेगा, कौन लाइक देगा, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा। फाइनली ही सेड, ओ वेल इट डजंट मैटर, कहती है देखो भाई लोग क्या सोचेंगे, हमारी फीलिंग क्या है, ये मैटर नहीं रखता। आई फील लाइक राइटिंग, करिए कि मैं महसूस करती हूँ, लिखना पसंद करती हूँ, तो मुझे डायरी लिखनी है। एंड आई हैव एन इवेंट ग्रेटर नीड, और कह रही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आवश्यकता है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, यानी जो भी हमारे हृदय में जो भी चीज़ें हैं आप उसको उतारना, यानी उस अपने चेस्ट के बोझ को उतार रही हूँ। अर्थात वो कह रही है कि देखिए लोग क्या सोचते हैं डायरी के बारे में, लोग पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको लिखना है तो लिखना है। दूसरी चीज़, वो जब कोई बात आपके दिमाग में घुसती है, तो आप अगर कोई आपका इंटीमेट फ्रेंड होता है, कोई दोस्त होता है, तो उससे आप अपनी बात कह लेते हो, लेकिन अगर नहीं कह पाते हो तो आप परेशान रहते हो। तो वैसे ही वो कहती है कि भाई देखो जब मेरा कोई बहुत ख़ास फ्रेंड तो है नहीं, तो वो क्या करेगी, सारी बातों को डायरी में लिख देगी, और जब सारी बातों को डायरी में लिख देगी तो उसका जो बोझ है, जो उसके दिल का बोझ है वो उतर जाएगा, वो हल्का हो जाएगा।
So dear students, I hope you will understand the summary of this lesson as well as I explain more about Anne Frank and also describe something about the lesson. So the first para has been completed. Tomorrow I will explain the next paragraph. I hope you will get benefit and like my videos and share in your group. Thanks to watch my video.